Students, in the last lecture we have discussed about the reflection of waves and superposition principle, and in the application of superposition principle the next topic is standing waves or stationary waves. As the name is indicating, these waves are stationary, these waves are fixed at point, and there is no transfer of energy takes place from one point to another. So first of all I am discussing its definition. When two sets of progressive wave trains of the same type means either these are two are longitudinal or transverse, having the same amplitude and same time period frequency wavelength, are traveling with the same speed, right, along the same straight line but in opposite direction. This is very important, it is in opposite direction, and superimpose, a new set of waves are formed and these waves are called as stationary waves. So if you want to understand, this is a stationary waves. Two waves are traveling, one wave is traveling suppose in forward direction, right, and the second wave is traveling in opposite direction, right. Either these two are of longitudinal or these two are of transverse, having the same nature, but they are traveling in opposite direction with the same amplitude, same wavelength, same frequency. One of the wave is traveling along this direction and second is traveling in reverse direction. When these two superimpose, then a new wave is formed. New wave is called as stationary wave. New wave is called as stationary wave. Is it clear? I am drawing it again. Suppose these are the two waves. ये आपकी incident wave और second wave is traveling along in a opposite direction, right? तो ये आपकी कौन सी हो गई? This is wave traveling along this direction and the second is the wave traveling in opposite direction, having the same amplitude, same wavelength, same speed but traveling in opposite direction. When they superimpose, the new wave which is formed is called as a stationary wave, where crest of one wave fall on the trough of the another, right? And there are certain points. अब these waves, क्योंकि crest fall on trough, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने किया था. दीज वेव्स डू नॉट प्रोपेगेट इन एनी डायरेक्शन, फिक्स्ड रहेंगी, नोर देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द मीडियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीज वेव्स स्टैंडिंग है, एक ही पॉइंट पे फिक्स रहेंगी, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा. नाउ देर आर सम पॉइंट्स in these waves. One is nodes and second is antinodes. What do you mean by these nodes? Nodes, these are the certain points in the medium which are permanently at rest. ये जो आपके points हैं, अगर आप ये बात करें, these are the points in the medium which are permanently at rest. First node, second node, third node, फोर्थ नोड. तो दीज आर दी पॉइंट्स विच आर परमानेंटली एट रेस्ट. फिर आते हैं एंटी नोड्स. दीज आर दी सर्टेन पॉइंट्स इन द मीडियम विच वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ये किससे वाइब्रेट करते हैं? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, और दीज आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स. और ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? ये आपके दीज आर दी पॉइंट्स विच वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. दिस इज A1, this is A2, this is A3, this is A4. So in between two nodes there is a one antinode, in between two antinodes there is a one node, right? अगर आपको पूछा जाए types of stationary wave, it is of longitudinally स्टैंडिंग वेव्स और ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स. दैट डिपेंड्स कि आपकी दो वेव्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफर्स है. तो ये इंसिडेंट वेव दिखाई, ये आपकी जो आपकी वेव रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करी है. तो नोड्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज जीरो एंड एम्प्टी नोड्स, दीज आर द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. एंड इन बिटवीन टू एंटी नोड्स देर इज द two antinode, there is one node, and in between two nodes there is one antinode, right? Now after this we have the characteristics of स्टैंडिंग वेव्स. जो अभी हमने डिस्कस किया उसको कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव. स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? दिस इज फर्स्ट वेव, जो हमने कहा दिस इज द फर्स्ट वेव विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. अब ये जो सेकेंड वेव अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम पॉइंट. दिस इज इंसिडेंट वेव, और ये जो मैंने डॉटेड वेव दिखाई है कौन सी वेव है? रिफ्लेक्टेड वेव. विच वेव इज दिस? रिफ्लेक्टेड वेव.
तो ये हम ये कहते हैं द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड बिटवीन इंसिडेंट एंड दिस इज अ सपोज रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ वेव, राइट। तो डिस्टर्बेंस किसके बीच में कन्फाइंड है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के बीच में। नो ऑनवर्ड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पार्टिकल टू एडजॉइनिंग पार्टिकल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई फॉरवर्ड मोशन नहीं होगा इसमें। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव एंड एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है बिकॉज दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन राइट इट इज एज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव और ट्वाइस द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, कुछ भी कह सकते हैं आप, right? Now there are certain points in the medium which are permanently at rest, which are called as node. And what is the distance between two consecutive nodes? It is lambda by 2. ये दो nodes के बीच का distance कितना होगा, lambda by 2, right? इसी तरह ही there are certain points in the medium which vibrate with the maximum amplitude. These are called as antinodes, or distance between two consecutive antinodes is also lambda by 2. Next is in between two nodes there is one antinode which we have discussed already. Next is in standing wave medium splits into number of segments. Each segment is vibrating up and down as a whole. अगर आप इसको इस segment में, ये एक segment है, इसमें particles of medium कहाँ vibrate करें, up, और इसमें कहाँ vibrate कर रहे हैं, down, right? And what is the phase difference? पार्टिकल इन द टू कंसिक्यूटिव सेगमेंट्स डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री, कितने डिग्री के एंगल से फेज डिफर होगा, 180 डिग्री, एंड इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट आर इन सेम फेज, और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ये क्या होंगे, सेम फेज में, ये सेम फेज में, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, टू कंसिक्यूटिव फेज में ये क्या होंगे, अपोजिट फेज में। वन सेगमेंट इज दिस, सेकेंड सेगमेंट इज दिस, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकेंड सेगमेंट, right? What is the phase difference between first and second segment elements or atoms? That is 180 degree, but in the same segment it is in same phase. Next, wavelength and time period of stationary wave is same as component wave. जो आपकी wavelength और time period होगा वो क्या रहेगा, same as stationary waves. Now we have to discuss standing waves in a string and normal modes of vibration. Very important topic is this, standing waves in a स्टैंडिंग वेव्स, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने नहीं करना, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ, हमें सिर्फ इसके नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करने, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इसका मैथमेटिकल नो नीड, मैथमेटिकल आपको नहीं करना है इसका, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, दिस इज सपोज इन वन योर हैंड एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड, दिस इज पॉइंट सपोज A and this is suppose B, and L be the length of the string, L be the length of the string. Now different modes of vibration का मतलब क्या है, always remember these two, A and B are fixed end, A and B are fixed point, or always at fixed point and always at fixed point nodes are formed. What it form, nodes. Fixed point पे हमेशा क्या बनेंगे, nodes. At fixed point nodes are formed. तो अब अगर आप एक स्ट्रिंग लें और उसको घुमाएं तो अलग अलग मोड्स में उसमें अलग अलग लूप्स बनते हैं, these are called as normal modes of vibration. This is a complete length. तो अगर हम एक साइन वेव ड्रॉ करें तो साइन वेव आपकी ये आ जाएगी, राइट? तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे एज्यूम मान के चलोगे, इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हम क्या कहते हैं कि हेयर दिस इज ए बी, दिस टू एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक। तो इन दोनों एंड्स पे क्या बनेंगे, नोड्स, दोनों एंड्स पे क्या बनेंगे, नोड्स, और पहला नोड यहाँ और दूसरा नोड यहाँ, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, राइट? और ये पूरी वेवलेंथ का कितना पार्ट होगा, लैम्डा बाय 2, फर्स्ट नोड। अब यहाँ से ये वेव इंसिडेंट वेव और इधर से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक, right? This is reflected wave. It means here the whole length is divided into, the whole length of the string is equal to the half of the wavelength, right?
तो यू कैन राइट दिस एज, अगर आपकी वेवलेंथ यहाँ लेमडा 1 है, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो लेमडा 1 कितना हो गया 2 इंटू एल. What is L? Length of string. अब frequency into lambda 1 is equal to speed. Speed is V. ये रिलेशन हमने पढ़ा था. Frequency into wavelength is equal to speed of wave. Right? तो अब nu 1 into lambda 1 equal to V. तो अब आपके पास nu 1, this is 2L is equal to V. तो nu 1 कितना आ गया? V divided by 2L. Here this frequency is called as fundamental frequency. This frequency is called as fundamental frequency, right? Here it is fundamental frequency nu 1 equal to V divided by 2L. Now, here this frequency is called as fundamental frequency, and the sound or the note which is produced, the sound or note which is produced is called as fundamental note और फर्स्ट हार्मोनिक. इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक. ये पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक, राइट? अब आपको क्या करना है इसके बाद? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको आप 1 मान लीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल नोट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 1. अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, स्ट्रिंग के ही सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, अब हम ये कहें कि अगर आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, अब नेक्स्ट जो आपका आएगा नोड, ये एक यहाँ आ गया, ये यहाँ हमने दे दिया. अब नेक्स्ट इधर आएगा, राइट, जहाँ एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है. तो इस पूरी लेंथ में, ए बी लेंथ में आपका बनेगा लाइक इन, सॉरी इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ. ये हमने फर्स्ट, ये ए बी इज़ अ लेंथ, ए बी इज़ अ लेंथ, तो हमने यहाँ हाफ ऑफ द वेवलेंथ शो कर दी थी. अब यहाँ पर आपका ये इस तरह से जाएगा. मीन्स पहला तो यहाँ नोड बना, फिर यहाँ, इसमें आप यहाँ पर नोड्स दिखाओगे. दिस इज N1, दिस इज N2 और यहाँ एंटी नोड होगा एक, राइट? अब इसमें यहाँ एक नोड बनेगा N1, N2 और ये N3, और रिफ्लेक्टेड वेव आपकी ये इस तरह से जाएगी, और एंटी नोड्स यहाँ A1 और यहाँ A2. अब पूरी लेंथ में आपका कितना डिवाइडेड है? द होल ऑफ द लेंथ इज डिवाइडेड इनटू वन वेवलेंथ लैम्डा 2. अब न्यू 2 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड. स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट. अब न्यू 2 इज इक्वल टू एल इंटू वी. तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? दिस इज वी डिवाइड बाय एल. वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. Why we are doing it? Because we want to see this is 2v divided by 2l. तो ये आ जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? न्यू बाय 2l. इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्मोनिक. दिस फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन. क्या बोलेंगे इसे? सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, राइट स्टूडेंट? अब आता है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके. ये साइन वेव आप ड्रॉ कर लेना. फर्स्ट में यहाँ तक लिया था लैम्डा बाय 2, अब लैम्डा. अब नेक्स्ट नोड कहाँ बनेगा जब कितनी वेव कंप्लीट हो जाएगी? लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2. ये लैम्डा बाय 2, ये पूरी क्या हो गई? लैम्डा. तो इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पूरी स्ट्रिंग में आपकी वन वेव और ये आपकी दूसरी वेव, ठीक है? दिस इज ए बी, राइट? अब यहाँ इसकी ये रिफ्लेक्टेड वेव इधर से जाएगी, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और नोड्स बनेंगे यहाँ N1, N2, N3 और N4. यहाँ एंटी नोड A1, A2 एंड A3. अब फॉर द होल लेंथ आपकी कितनी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो कितनी आपकी वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है? लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 बाय 2. तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा 3 बाय 2, राइट? अब यहाँ से आप न्यू 3 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू स्पीड लगाओगे, और लैम्डा 3 कितना आ गया? 2l बाय 3.
तो ये न्यू 3 आ गया, दिस इज 2L/3 इज इक्वल टू V। तो न्यू 3 इज इक्वल टू 3V/2L। तो ये आ गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी? V/2L। तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे? दिस फ्रीक्वेंसी इज थर्ड हार्मोनिक and second overtone. So only we have to discuss 3 modes of vibration in a string. Is it clear, student? Okay, thank you.